आदाब ते दिलों सत श्री अकाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਦਿਵਿਆ ਨੀਜਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਨਹਿਤ ਮੇਂ ਜਾਰੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਸਰਤ ਬਰੂਚਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ। ਅਨੁਜ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਲੂਸ਼ਾਲੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਸੰਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਡ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਕੇਗੀ ਮੂਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਬੇਸਡ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਕੇਗੀ ਫਿਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੰਗਦੇ ਨੇ, मतलब शर्माते हैं। तो ऐसा क्यों चुना आपने टॉपिक? बेसिकली सत श्री अकाल। इतनी पंजाबी आती है मेरे को कि मैं आप लोगों के पूरी पंजाबी समझ लेता हूँ, हिंदी खाली आंसर हिंदी में दे रहा हूँ। सो उसको बेसिकली क्या होता है कि अगर हर बंदा यही सोचेगा कि सेफ फिल्म बनाते ना, कि ये सेफ फिल्म बनते हैं, चलो हॉरर बना दी, थोड़ी कॉमेडी बना दी, तो फिर ऐसी फिल्में कोई बनाएगा नहीं। और जब हम बात करते हैं जनहित में जारी, तो हमको इट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट जिसका मतलब है, तो जो एक मैसेज लोगों को पता है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सब मालूम है कि हाँ ये करना चाहिए, लेकिन सामने शर्म आती है लोगों को कॉन्डम लेने पे या इस्तेमाल करने। जब लेने नहीं जाओगे तो इस्तेमाल कैसे करोगे? लेकिन बाकी चीज़ में शर्म नहीं आती जब 40 से 140 करोड़ हो जाओगे। तो आई थिंक हम लोगों ने जब ये कहानी, राज मेरे पास में, और हम लोग एक दूसरे को इतने साल से जानते, तो उसने जब बताया कि ये मेरे को पिक्चर बनानी है, इसको करते हैं, तो मैंने उसको बोला यार फिल्म तो बनानी है, तो ऐसी फिल्म चुनते हैं जो एंटरटेनिंग भी हो और कोई मैसेज भी हो। और फिर तब हमने ये सब्जेक्ट चुना। और एज अ प्रोड्यूसर वी आर वेरी हैप्पी द वे फिल्म हैज़ टर्नड आउट। जय ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया उसको, और नुसरत कमाल है। नुसरत, अनुज ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੈ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੱਬਲੀ ਜੇ, ਬੜੇ ਜੌਲੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, और ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਫਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ डायरेक्शन ਦੇ ਲਈ? उतना ही फन, इनफैक्ट उससे ज़्यादा फन था सेट पर। जितना हम लोग अभी फ़न कर रहे हैं वाइल प्रोमोटिंग दिस फिल्म, इससे 10 गुना ज़्यादा ही फ़न था सेट पर। बिकॉज ऑब्वियसली वंस आप जब कोई ह्यूमरस फिल्म डायरेक्ट कर रहे होते हो, उसमें एक कॉमेडी का फ्लेवर होता है, तो वो सीरियस तरीके से तो हो नहीं सकता। करेक्ट, वो एटमॉस्फेयर, वो ऑरा, वो टाइमिंग आपको सेट पे एज अ डायरेक्टर क्रिएट करनी पड़ती है, ताकि आपका एक्टर कंफर्टेबल हो जाए और वो आपको जो टेक चाहिए, जो परफॉर्मेंस चाहिए, वो दे पाए। सो वो एटमॉस्फेयर हमेशा हेल्दी था, बहुत फ़न था, और ये फ़न में हमने बहुत अच्छी बात कहने की कोशिश की है, एंड वी अचीव दैट। ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? मैं तो कहीं भी लिख लेता हूँ। शांति है कहाँ? 140 करोड़ तो घूम रहे हैं, शांति बची कहाँ है? जहाँ देखो भीड़ लगी हुई है, कहाँ जाएगा बंदा? पहाड़ों पे भी जाओ, वहाँ कोई ना कोई निकल के आता है वहाँ भी। तो ऐसा कुछ नहीं, अब तो मैंने आदत डाल ली, मैं कहीं भी लिख लेता हूँ। अब तो मन शांत तो सब शांत। क्या बात, ऐसा है। अनुज जी। जी मैम। अच्छा, नुसरत ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ जी बहुत बढ़िया, दिल गार्डन हो गया मेरे के साथ। ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਘੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। मैम बहुत मज़ा आया। मैं तो काफ़ी साल से कोशिश में लगा था कि फाइनली ब्रेक मिले। ਅੱਛਾ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀਗਾ? फ़ोन किसी को घुमाया नहीं, मैंने फ़ोन ही घुमा दिया था एक्साइटमेंट में। मैं ऑफिस में छोड़ के चला गया, फिर नया फ़ोन लेना पड़ा मुझे। ओह गॉड। हाँ,
इतनी एक्साइटमेंट? अरे काफ़ी, अभी तो मैं बहुत शांत बैठा हूँ पर अंदर धक 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 अभी भी होता रहता है। क्यों उनको उधर बिठाया, मुझे इधर बिठाया? बोले इसका दिल धड़कता रहेगा, बात नहीं कर पाएगा। मैं तब भी आप लोगों को मैंने दूर किया, मैंने देखा सारे इंटरव्यूज में आप लोग एकदम बगल बगल में बैठे थे। आई वॉज फीलिंग जेलस। अच्छा फाइनली मतलब हॉट हैपनिंग एवरीथिंग जिन्ने भी कुड़ियां दी तारीफ च वर्ड्स यूज होने चाहिए ना, मैं सारे यूज कर सकती हाँ। मेरे को वर्ड्स ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ नुसरत ਦੇ ਲਈ। बट ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਾइटमेंट ਸੀਗੀ इस फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ? मुझे कॉमेडी एज ए जॉनर बहुत पसंद है। मैंने स्टार्ट ही कॉमेडी से की थी, बट पंच लाइन्स कभी मेरी नहीं थी। पंच लाइन मुझ पे थी हर बार। पंचनामा था पर पंच लाइन नहीं थी। पंचनामा मुझ पे था। आई डोंट नो कैसे। तो राज सर ने कहा था ये ड्रीम गर्ल शूट करते हुए कि जब वो एक एक लाइन मेल एक्टर्स को देते तो मैं उनसे मॉनिटर के पीछे बैठ के बोलती, मैंने कहा सर एक लाइन मुझे भी दे दो, मैं भी बोल देती हूँ कुछ। मैंने कहा सर ऐसे बोल दो, फिर मैं अपनी कोई इम्प्रोव की लाइन बोलती जो बिल्कुल फनी नहीं होती। Right. तो वो मुझे ऐसे देखते सर नहीं ये नहीं बोलोगे। मैंने कहा कुछ तो दे दो। तो ये सर तुमको एक लाइन का तुमको एक पूरी पिक्चर देंगे, जो उन्होंने दे दी। वाह, कुछ चीज़ां ਆਪਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ दायरे 'ਚ कि ये गर्ल के लिए है, ये बॉय के लिए है। सो ये फिल्म आपको लगता है कि ये बैरिगेटिंग सी ये ख़त्म कर देगी ये सीमा? कोशिश तो वही है यार, कोशिश यही है कि एक लड़की कॉन्डम मांगे या एक लड़का कॉन्डम मांगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे सही गलत शर्म या सही कि लड़का मांग रहा है तो ठीक है, लड़की मांग रही है तो हाई ये क्यों कर रही है, या एक लड़का सैनिटरी नैपकिन पैड खरीद रहा है तो ये ऐसी कैसी है, बट लड़की जाके खरीद के मांग सकती है। ये डिफरेंस आई डोंट थिंक होना चाहिए। तो आई थिंक वी शुड लुक बियॉन्ड दीज थिंग्स एंड जस्ट डू व्हाट्स राइट फॉर अस एंड डू राइट बाय ईच अदर। अच्छा ਅਨੁਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, शादी से पहले खुल के बता देने चाहिए हमें अपने इंटरेस्ट या नॉन इंटरेस्ट। तो अगर आपकी शादी हो और कोई बंदी सामने से आके बोल दे कि भाई साहब मेरा तो ये इंटरेस्ट है, मैं तो शराब पीती हूँ या मैं सिगरेट पीती हूँ या उसके इंटरेस्ट पार्टीज़ में जाना एंड ऑल दैट, तो आई यू ओके विद दैट? मैं क्या हुए मज़े साथ करेंगे। देखिए लेकिन भाई साहब भी बोल दिया था। हाँ, पर उन्होंने भाई साहब भी बोल दिया मेरे को, तो फिर वो शादी कैसे करेंगे मुझसे? कि भाई साहब मैं तो शराब पीती हूँ। मैं क्या, अब आपने भाई साहब बोल दिया, अब आप शराब पियो सुट्टा पियो, मैं क्या करूँ? शादी आपने वैसे ही नहीं करनी मुझसे। हुआ है वैसे ऐसे कभी कोई लड़की ने आपको भाई बोल दिया हो और आप फिर चाहते पछताई हैं, वो उनका है रिग्रेट। नहीं, मजाक की बात तो क्या है, खैर अब ऐसा जिन्होंने भाई बोला है मैंने उन्हें बहन ही माना है। राइट। बस राज सर, Yeah. मैं उन्हें थोड़ी देर पहले ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ओह अमेजिंग मैन, बहुत कैंट गाने हो। प्लीज 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 दो लाइन। मैं आपको बताऊं कि गानों से मैं बेसिकली ना मैं एक लिरिसिस्ट ही हूँ। मैं बॉम्बे गया लिरिसिस्ट बनने था। ओके। ये मैंने बहुत रेयरली किसी को बताया होगा, लेकिन वहाँ पहुँच के जब ऐसे कॉमेडी लोग समझने लगे, सुनने लगे, तो उसके बाद लिरिक्स लिखने का टाइम ही नहीं मिला। तो वो 20 साल ऐसे निकल गए। MH1 से मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है। अच्छा। हमारे जब हम कॉलेज में थे तो 2002-3 की बात है, वहाँ पे 4-5-7 सॉन्ग होते हैं ना, हम लोग बना लेते, रिकॉर्ड कर लेते, दिल्ली में रिकॉर्ड करवाया। राइट। और कि भाई इसको इस एल्बम को, पहले एल्बम चलती थी पूरी 6-8 गानों की, तो CD बनवा के पहुँच गए कि भाई कहाँ देन को, तो कहते नज़दीक सबसे ऑफिस पड़ता है MH1 का। बॉर्डर पे कोई बॉर्डर था ना, मैं नाम भूल गया। राइट। तो कहते वहाँ चलो। मैं कहता गाने तो हिंदी है, कहता कोई बात नहीं, हमारा वो तो देखो ना, धुन देखो, धुन तो हिंदी इंग्लिश क्या, वो तो पहुँच गए साहब। अब वहाँ हमारा अनफॉर्चुनेटली बात नहीं बनी। उसके बाद हम पहुँचे टी सीरीज, अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी बात नहीं बनी। लेकिन रिश्ता हमारा गानों से बहुत पुराना है और म्यूज़िक से बहुत पुराना है, और मैं पंजाबी म्यूज़िक बहुत सुनता आया हूँ। बब्बू मान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जस्सी पाजी साहब बहुत बड़े हैं, हार्डी, बाकी जितने भी हैं, क्योंकि जब कॉमेडी लिख रहा था तब भी सब हे सिंगर ही सब। आप कपिल सिंगर, लहरी पाजी सिंगर, तुम्हारे ठाकुर, तुम्हारे और सारे लोग पंजाबियों से मेरा नाता रहा है शुरू से। तो बब्बू मान साहब का गाना गा देता हूँ एक। अरे वाह 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 वाह। महफिल मित्रां दी। आंदो। सब बैठे हैं हम लोग आज। महफिल मित्रां दी सजदी रोज चौबारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चौबारे, हो बोतलां दे डट खुल गए, हो बोतलां दे डट खुल गए, तेरा जिक्र होया मुटियारे, महफिल मित्रां दी सजदी रोज चौबारे, खंग खंग लंघ दिए काम तेरा नित दा,
साडे लिए बन गई सवाल तू गणित दा हो तेरे बिना मर जाएंगे आए हो तेरे बिना मर जाएंगे गल सुन ले बदन ये नारे महफिल मित्रां दी सजदी रोज चवारे। क्या बात है जी, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। Thank you। मतलब ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोफेशन चेंज ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। और नहीं मैं तो मतलब यही बड़ी मुश्किल से समा पाया हूँ अभी अपनी चेंज करो। जय सर आपसे पूछूंगी कौन कौन सी लोकेशंस पे शूट हुआ है? चंदेरी में शूट किया है, मेजर पोर्शन चंदेरी में शूट हुआ है, उसके पास एक ललितपुर एक जगह है वहाँ शूट हुई है, अशोकनगर शूट हुआ है और हमने ग्वालियर शूट किया है। तो मोस्टली पूरी फिल्म जो है 90% वो एमपी में शूट हुई है। अच्छा ऐसा हुआ कि क्योंकि आपने जिन जिन जगहों के नाम बताए आई एम श्योर उनमें गांव भी होंगे, गलियां भी होंगी, वहाँ पे परमिशन लेना मुश्किल हुआ होगा जस्ट बिकॉज आपका टॉपिक इतना बोल्ड है? मुश्किल तो आई थी, मुश्किल ये नहीं आई थी लोकेशन मिलने की, दिक्कतें ये आई थी कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा विनोद जी को कि ये बोल्ड सब्जेक्ट, मैं नहीं मानता ये बोल्ड सब्जेक्ट, ये एक ब्रेव सब्जेक्ट है। तो बोल्ड और ब्रेव में बहुत डिफरेंस है। तो बोल्ड हमको नहीं कहना चाहिए फील्ड में, मैंने एक इंटरव्यू में कहा है कि दिस इज़ नॉट अ बोल्ड सब्जेक्ट, दिस इज़ अ ब्रेव सब्जेक्ट। तो ये ब्रेव सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करना और लोगों के बीच जाके शूट करना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग था, बिकॉज कॉन्डम एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टैबू है। तो हम जहाँ भी शूट कर रहे थे कॉन्डम के सीन्स, बिकॉज एक्सटीरियर बहुत थे फिल्म के अंदर, और नुसरत का कॉन्डम बेचना, उन सब खड़े होकर मर्दों के बीच 10 मतलब 1000 लोग जमा होते थे, शूटिंग देखने वाले भी और हमारे जूनियर आर्टिस्ट भी और वहीं के भी लोकल लोग। तो उनका जो रिएक्शन था वो फिल्म में कैप्चर किया है हमने, वो रियल रिएक्शन है, जो जितने भी रिएक्शन सब रियल है, उनकी हंसी भी रियल है। मतलब आप समझो मैंने वो रियल कैप्चर करने की कोशिश की कि नुसरत कॉन्डम बेच रही है मर्दों के बीच और वो सब रिएक्शन है वो रियल है। सो दैट वाज रियल रिएक्शन कि लोग हंस रहे हैं, लोग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। जो रियलिटी है, जो ब्रूटल रियलिटी है हमारे इंडिया की, वो फेस हमने किया और वो फेस करते हुए हमने ये फिल्म शूट की है। और मुझे ये ऐसा विश्वास है कि वो जो रिएक्शंस थे वो रिएक्शन इस फिल्म को देखने के बाद चेंज हो जाएंगे। एंड जय सर ने जो कहा ना, आई एग्री विद हिम। जितने इंटरव्यूज में मुझसे भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये बोल्ड टॉपिक क्यों चुना, मैंने भी सेम जवाब दिया। मैंने कहा एक तो बोल्ड बोल के ना उसको बदलो मत। समवेयर आई फील कि हम ही उसको बोल्ड बोल के ना एक सर्टेन टैबू उसको अटैच कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल्ड नहीं है। ही इज राइट, इट्स अ ब्रेव स्टेप। इसी के लिए सेंसर ने भी यूए सर्टिफिकेट दिया यस कि उनको भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको। अगर बोल्ड होगा तो वो ए सर्टिफिकेट मिलता है। यूए सर्टिफिकेट है, हंसता हुए आप जाओगे बाहर, एंजॉय करोगे और एक मैसेज लेके बाहर चले जाओगे। दैट्स द फन। या आपने जो इस स्टोरी में बताया है बड़ी खूबसूरत तरीके से, अपनी बात कही है बेबाकी से, और ऊपर से उसे एक मैरिड वुमेन के तौर पे कनेक्ट किया है, विच इज़ कमेंडेबल। It was written and directed by them. I only acted it out. But this point of the film मेरे लिए actually बहुत ज़्यादा I connect to it a lot. कि शादी करने के बाद वो घर पे पता चलता है कि वो एक कॉन्डम कंपनी में काम करती है और कलेश होता है, बट वो घर तोड़ती नहीं है, वो रिश्ते तोड़ती नहीं है, वो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ती कि लोग बिखर जाए। वो सबको साथ रख के एक मतलब कहीं से वो सबको ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लाने की कोशिश करती है, प्यार से, समझ से, पेशेंस से, शांति से। वो सबको साथ लेके अपने साथ कन्विंस करना चाहती है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत नहीं है। वो मुझे बहुत पसंद है इस फिल्म। बिल्कुल। अच्छा राज सर, बड़ा ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਨ ਸੀਗਾ अमरेला। मम्मी जी कहते हैं कि बेटे अब हमें भी अमरेले घर में अमरेला तो तुम फ्री में दोगी, ऐसा कुछ। उनको पता ही नहीं बात कॉन्डोम की चल रही है। हाँ राइट। उन्हें ये लगा कि जेन्युइनली ये अम्ब्रेला कंपनी में काम करती है, तो कहती है कि हमें फ्री में दोगे बेटे, हम तो घर वाले लोग हैं, हमें तो रिश्तेदारों को हर चीज़ फ्री में चाहिए होती है, चाहे कुछ भी हो। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, आप देखोगे वो चाची हैं। ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀਨ ਦਾ स्पेसिफिकली आइडिया ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? सी लिटिल पहले फिल्म का नाम लिटिल अम्ब्रेला ही था। अच्छा। तो फिर बाद में चेंज किया हुआ उसको कि लिटिल अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मासी नहीं लगता है बहुत, तो फिर जनहित में जारी टाइटल बाद में आया। तो लिटिल अम्ब्रेला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें ये जॉब करती हैं। तो वो उसी जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो तभी वो लिटिल अम्ब्रेला का नाम आया था। और फिर वो छोटा छोटे जो बोलते हैं लोग हमेशा कि छोटी छतरी दे दो, छोटी छतरी दे दो छोटे शहरों में, तो वहीं से वो चीज़ ईजाद हुई थी। बिल्कुल। अनुज जी, आपको फिल्म में ऐसा कोई सीन रहा जिसे शूट करने में डिफ़िकल्टी हुई? क्योंकि देखो खूबसूरत लड़की सामने खड़ी होना, तो ये बंदा डायलॉग भूल जाए ये जायज़ है।
ऐसा कभी हुआ कि नुसरत सामने थी और आप उनको देखते ही रह गए और जी, भूल ये गए? मैं कई बार एक्सेप्ट नहीं बहुत कर बार हो चुका है। बट मैंने तो एक आधा पूछा था। एक बार नहीं किया, इसने बहुत बार किया ये, और उसके लिए हमेशा बोलता सॉरी सर। ये ना खो जाता था, ये नुसरत को देख के खो जाता था। मतलब भाई, मतलब इसके लिए बहुत डांट खाई इसने चीज़ के लिए। अरे फैक्ट है कि टू जस्ट मतलब ये परफॉर्म कर इसको देखते रह जाता था। राहुल तेरे डायलॉग्स, और सर मैं करता हूँ, ये बहुत बार हो चुका है, ये फैक्ट है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस पर। बट जोक्स अपार्ट ये हुआ है नो डाउट, बट अरुण ने मेहनत बहुत की है, वो हो जाता है कोई भी। जब वेरी एक्सपीरियंस है, तो वो कोई भी एक्टर हो जाता है। आप किसी ये एक्सपीरियंस किसी भी न्यू कमर्स को पूछिए तो ये एक्सेप्ट करता है और वो बोलता है कि यार मैं तो अमिताभ बच्चन के सामने वो रह गया, ऐसे रह गए। ये सबका होता है, इसने भी सेम चीज़ की है। बट जो तो हार्ड वर्क किया इस फिल्म के अंदर, जो उसने प्रिपरेशन की अपने कैरेक्टर को लेके, वो काबिल तारीफ है। अनुज बहुत मेहनत की है आपने, मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत किस चीज़ में की है? तो मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ बार बार। देखो कोई इसमें कोई शक नहीं है, मतलब लड़की खूबसूरत सामने खड़ी हो ना तो कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। इनफैक्ट मैं तो खुद मतलब देख के सोचती हूँ, जब भी मैं इनका वो सॉन्ग सुनती हूँ ना, ओ गॉड, वो रेड साड़ी, मैं वो चाह के भी अपनी नज़रें नहीं हटा सकती। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं लड़की हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, बट फिर भी जब सामने हॉट एंड हैपनिंग कोई भी लड़की या लड़का हो तो मन अपने आप डोल जाता है। राइट सर, आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं आपके? मतलब इस तरह के और भी कुछ अच्छे मैसेजेस आप देंगे? मैसेजेस नहीं, एंटरटेनिंग फिल्में बनाएंगे। एक फिल्म हम बना रहे हैं अभी जिसका नाम है शेर सिंह राणा, बायोपिक है, विद्युत जामवाल और ये कर रहा है अपना श्री नारायण। फिर एक मैं मोहित सूरी के साथ कुछ बना रहा हूँ, हम एक सुपन वर्मा का कुछ कर रहे हैं, कोई वही बायोपिक। तो फिल्में हैं, काफ़ी फिल्में हैं, पर एंटरटेनिंग फिल्में होंगी और कुछ मैसेज पर इंडिया की स्टोरी होंगी। हम लोग बेसिकली वी आर फीचरिंग ऑन इंडियन हीरोज़, जो एक्चुअल हीरोज़ हैं, या इंडिया की स्टोरी, या जो ज़रूरत है कि यार ये कहानी आनी चाहिए। सर पंजाबी फ्लेवर मत भूलिएगा। पंजाबी बना रहे हैं हम लोग एक द ग्रेट जनरल ऑफ इंडिया एक्चुअली जो थे महाराजा रंजीत सिंह के जो जर्नल थे, वो फिल्म बना रहे हैं, बताएंगे आपको जल्द ही सुनेंगे, हम भी दोबारा मिलेंगे। सर नुसरत, आपकी फिल्म की यूएसपी क्या है? आप ज़रूर बताएं लोगों को, ताकि वो सिनेमा थिएटर्स तक ज़रूर पहुँचे आपकी फ़िल्म देखने। यार यूएसपी तो आई थिंक हमारी फिल्म की ये है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से कुछ एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं, बट ऑल्सो हम एंटरटेन बहुत करने वाले हैं। तो आपको किसी पॉइंट पे नहीं लगेगा कि आप ये क्या सुन रहे हो और ये क्या देख रहे हो। एंड सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि इवन दो ये फिल्म एक कॉन्डम सेल्स गर्ल की है, आप पूरी फैमिली के साथ आके बैठ के देख सकते हो। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं है, किसी भी चीज़ से आप एम्बैरस नहीं होंगे, किसी भी चीज़ के हमने कुछ भी डाला ही नहीं है फिल्म में। इट्स अ क्लीन फैमिली एंटरटेनर। तो 10 जून को आइए, जनहित में जारी। गर्ल्स में बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, किस तरह की लड़की शादी के लिए चाहिए आपको? बस जो मुझसे प्यार करे, बस मैं ज़्यादा नहीं। देखिए बहुत सारी प्यार करने लग जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी लड़की, देखो उनको भी खांसी हो गई आपकी ये बात सुन के। थोड़ा सा जवाब चेंज कर दीजिए। बहुत पता अच्छा नहीं। जवाब दिया उसने कहा है कि जो मुझसे प्यार करे। उसने ये नहीं कहा जिससे मैं प्यार करूँ। हाँ, वो तो सेफ खेल गया लड़का। सेफ ठीक है वो। सर आपकी अगली फिल्म कौन सी आने वाली है? मेरी अगली फिल्म तो क्या कहें, मैं भी इस फिल्म में इतना 2 साल बिजी था, लिखने में, डायरेक्ट करने में, रिसर्च करने में, शूट पे, पोस्ट प्रोडक्शन में। अभी तक फ़ोन पे लगा हुआ था, बाहर फर्स्ट रील पे काम, लास्ट रील पे काम चल रहा है। तो एक स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने 4-5 साल पहले, जिसको लेके मैं स्ट्रगल कर रहा था। वो फिल्म हुई नहीं। जिस फिल्म के थ्रू मैं राज को मिला था, शायद से मैं वो फिल्म नेक्स्ट अपनी करूँगा, वो जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ। जरूर। राज सर जी नहीं कर रहा था सारे छड़ के ਜਾਂਦਾ या ਭੇਜਣ बट बाय द एंड जाना पएगा। मैं जान तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ 2 ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਐਕਟਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ Song ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ। बहनों से राखी है, माँ से है छाया, बीवी से है घर और बेटी से माया, इनसे ही तो तू है वजूद में आया। बस इतनी सी बात तो समझ ना पाया, कारण जन्म का नारी है, कहीं अंत का ना हो घबराता हूँ, फिर से कही हुई बात में सुन लो एक दफ़ा दोहराता हूँ कि ही जन्मे सब शीशे जन्मी, दुनिया ये सारी है, बिल्कुल ना चलेगी लौंडों ने जो की होशियारी है। अरे अगड़म बगड़म बहुत हुआ, कर ली नारी ने तैयारी है, हल्के में लेने वालों सुन लो,
सब पे एक मुमनिया भारी है, ये सूचना जनहित में जारी है, अरे भारी है, ये सूचना जनहित में जारी है, अरे भारी है। ਵਾਓ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਹਿਤ ਮੇ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा 100 रुपये टिकट, ये सच सुनी मैंने बात? फ्राइडे को 100 रुपीज़ में मल्टीप्लेक्सेस में आप पिक्चर देख सकते हो। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਨਹਿਤ ਮੇ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ये सूचना जनहित में जारी है, अरे भारी है, ये सूचना जनहित में जारी